Today's topic is future contract pricing, pricing of future contracts with cost of carry model. Cost of carry model. If the cost of 10-gram gold is the spot market in the spot market is rupees 35,000, if the cost of 10-gram gold in the spot market is 35,000 and the locker rent is rupees 1,000, for 3 months insurance is rupees 250, interest rate at the rate 7% per annum. We have to add locker cost. Locker rent is the cost of carry model के हिसाब से this is the cost. Insurance for 3 months is the cost. If we are buying a 3-month future contract of gold, we have to add cost of insurance in the spot price. Also calculate 7% per annum, but keep in mind you have to calculate for 3 months. So 7% into 3 by 12. Okay. So what is the cost of carry model? This is used for pricing the future contract. 3-month future contract is equals to spot price plus locker rent plus insurance charges into interest rate. Multiply with the 1 plus interest rate. Interest rate is of 7% per annum. So multiply with 3 by 12. R is the 7% rate of interest. 3-month future contract is equals to 35,000 is the spot price of gold. 35,000 is the spot price of gold. You have to add the cost of storage, that is locker rent, 1,000. You have to add insurance charges, 250. Close the bracket. It is 36,250. 36,250 multiplied by 1 plus R into months divide by 12. कितने months का contract आप ले रहे हैं यहाँ पर? ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट में 3 months का कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हो, ठीक है? तो 3 months का कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग लेते हैं तो 1 plus 0.07 into 3 by 12. 36,250 into 1 plus 0.0175. This is 36,884.375. जब भी फ्यूचर का प्राइस ज्यादा होता है स्पॉट प्राइस से, 35,000 से फ्यूचर प्राइस क्या निकाला हमने? खुद निकाला है हमने फ्यूचर प्राइस. जो आप स्क्रीन पे देखते हो फ्यूचर प्राइस, वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से, डिमांड और सप्लाई के थ्रू ये डिसाइड होता है. लेकिन हम लोग ने खुद कैलकुलेट किया. कैसे? सारे कॉस्ट ऐड किए हमने. गोल्ड के रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है, गोल्ड को लॉकर में रखना पड़ता है, उसके खर्चे, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, वो खर्चा, इंटरेस्ट का जो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो इंटरेस्ट आपका जो मिस हो रहा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. 36,250 into 1 plus 0.0175. 36,884.375. फ्यूचर प्राइस ज्यादा है, स्पॉट प्राइस से कंपेयर कीजिए. फ्यूचर प्राइस ज्यादा है. इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, कॉन्टेंगो. कॉन्टेंगो मीन्स when future price is higher than the spot price, it is called as contango. और अगर फ्यूचर प्राइस कम रहेगा, अगर फ्यूचर प्राइस कम रहेगा स्पॉट प्राइस से, तो वो सिचुएशन बैकवर्डेशन होती है. नेक्स्ट सम. Calculate the fair value of shares of ABC Limited
of 3-month future contract with the help of following details. अभी एबीसी का आप 3 मंथ्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइसिंग करोगे, आपको क्या क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? स्पॉट प्राइस दिया रहेगा और इंटरेस्ट रेट दिया है। तो स्पॉट प्राइस पहले लेना है, उसमें 1 प्लस आर इंटू एम डिवाइड बाय 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 मंथ्स का हमें करना है। 1 प्लस 0.09 इंटू 3/12, पहले जो 9% है उसको इंटू 3/12 करना है। 9% को 3/12 करना है पहले, जो आंसर आएगा उसको आप 1 में प्लस कीजिए। 250 इंटू 1 प्लस 0.0225 is equals to 255.625. So this is the fair value of shares or future price. हमने स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस कैसे निकाला, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया, स्टॉक का फ्यूचर का प्राइस हमने निकाला। एबीसी 3 मंथ स्टॉक फ्यूचर्स, the price is 255.625. Again, this price is greater than the spot price. Future price is greater than the spot price. So this situation is called as dash. Tell me in the chat box, when future price is greater than the spot price, it is called as dash. Methylesh wants to invest in Nifty futures. Spot price of Nifty is 6,000 with a contract size of 10. Lot size is minimum quantity 10. He can borrow funds at 12% per annum. Calculate the fair value. Fair value means future value of 2-month Nifty futures. 2-month Nifty future contract is spot price into 1 plus R into M divided by 12. 6,000 into bracket 1 plus again bracket 0.12 into 2/12 bracket close. So price of one contract is 6120. 2-month Nifty future contract, one contract is 6120. You are buying minimum lot size of 10 contracts. So multiply with 10. One contract price is 6120, 10 contract price is 61,200. 61,200. कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल, इसी को ही कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। मैंने अगर आपको पूछा कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या है, इसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल से हम लोग फ्यूचर का प्राइसिंग करते हैं। स्पॉट प्राइस दिया होता है, इंटरेस्ट रेट दिया होता है और थोड़ी कॉस्ट दी होती है। कॉस्ट ऑफ कैरी मीन्स थोड़े कॉस्ट ऐड करके आप फ्यूचर का प्राइस कैलकुलेट करते हो। तो ये मॉडल बहुत इजी है। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइसिंग करना। विपुल प्रकाशन का बुक अवेलेबल है, आप उसको परचेज करो। ठीक है, तो प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स एक चैप्टर है पूरा, उसमें जो जितने भी फ्यूचर्स हम लोग बाय करते हैं उसका प्राइस और जो हमने कैलकुलेट किया है प्राइस, उसका प्राइस हम कंपेयर करते हैं। जो आप यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो इसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स द वैल्यू विच इन्वेस्टर इज कैलकुलेटिंग by taking into consideration the interest cost and taking into consideration the cost of financing. जब हम किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट रेट या उसके डीमैट के चार्जेस भी अगर यहाँ पे दिए रहेंगे
अगर हम डीमैट के चार्जेस भी दिए हैं तो डीमैट के चार्जेस भी आपको ऐड करने हैं. ईशान इज सेइंग फंडामेंटल वैल्यू, वेरी गुड. This value you are calculating on the basis of cost of carry, storage cost, demat charges given in the question. Okay, so fair value क्या होता है? Fair value मतलब जो intrinsic value होता है. कॉस्ट ऑफ कैरी से हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. हम लोग फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइसिंग कर रहे हैं. जबकि फ्यूचर्स में हम होल्डिंग कॉस्ट होती ही नहीं है. आप जानते हो इसमें कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती है, फिर भी हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं. ओके, अगर हम कमोडिटीज में देखें तो कमोडिटीज का तो हम लोग को स्टोरेज भी करना पड़ता है. जितना भी रॉ मटेरियल फैक्ट्री में पड़ा होता है, जैसे गोल्ड है, लॉकर में रखेंगे गोल्ड को, या कोई भी इंडस्ट्रियल मेटल है, उसको हम लोगों को वेयर हाउस में रखना पड़ता है. तो वेयर हाउस की कॉस्ट को जब हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो हम लोग फ्यूचर का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, SBI futures trade on NSE as 1, 2 और 3 month contract. अब ट्रेडिंग साइकिल सबको मालूम है, 3 मंथ की अवेलेबल है, 2 मंथ की अवेलेबल है, 1 मंथ की अवेलेबल है. मनी कैन बी बोरोड एट 16% per annum. Rate of interest is 16%. What will be the price of 1 unit of 2 month future contract? अभी 2/12 करना पड़ेगा. अगर आपको फ्यूचर प्राइस निकालना है तो आपको इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट दिया है 16%, उसका 2/12 करना पड़ेगा. ये पूरे साल का इंटरेस्ट है 16%. SBI is not giving any dividend in the 2 month period, assuming the spot price of SBI is 228. स्पॉट प्राइस दिया है 228. आपको फ्यूचर का प्राइस निकालना है. 2 month SBI future contract spot price into 1 plus bracket R into n/12 R into 2/12. 228 into 1 plus 0.16 into 2/12. 2 month SBI future contract price is 234.08. Okay, so as per this theory, this is a situation of contango. Contango means the future price is greater than the spot price. So investor will calculate this value with model. सबको समझ में आया? If the cost of 1 kg of silver is rupees 50,000 and locker rent is 2,500, insurance charges 500 for a month, interest rate on borrowed fund is 12% per annum, which is compounded on monthly basis. What will be the fair value of 1 month future contract? अब यहाँ पे जब हम लोगों को ऐसा दिया है कंपाउंडेड ऑन मंथली बेसिस, तो हमें अलग तरीके से करना है. पहले इसको R/12 करोगे इंटरेस्ट रेट को, और यहाँ पे 1 मंथ दिया है तो रेज टू 1 आएगा, रेज टू नंबर ऑफ मंथ्स.
पहले हम लोग क्या कर रहे थे, r इंटू 1/12 कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, 1 प्लस आर इंटू 1/12 नहीं करना है, क्योंकि 1 मंथ का आप निकाल रहे हो तो सीधा यहाँ पे रेस टू 1 करोगे। अगर 2 मंथ्स का होगा तो रेस टू 2, 3 मंथ्स का होगा तो रेस टू 3। 1 month silver future price is equals to spot price plus cost of carry. Spot price plus cost of carry means locker rent, insurance charges, 1 plus r by 12 raised to n. 1 month silver future price is equals to 50,000 spot price plus 2,500 locker rent plus 500 insurance. First add all the cost of carry of silver, then multiply with 1 plus interest rate 0.12 divide by 12, ब्रैकेट क्लोज करके रेस टू n जो लिखा है उसको रेस टू 1 लिखना है, मतलब अंदर इंटू 1/12 नहीं करना है, रेस टू 1 करना है, क्योंकि कंपाउंडिंग है ये। 1 month silver future price is equals to 53,000 into 1.01 is equals to 53,530. So this is the fair value of 1 month silver future contracts. Again, the silver future contract price is higher than the spot price. This is the situation of contango. Future price is greater than the spot price. अगर ये 2 मंथ का निकालना है तो यहाँ पे रेस टू 2 करना है, r by 12 रेस टू बाहर आएगा 2। अगर 3 मंथ का होगा तो रेस टू 3। ओके, कैल्सी में कैसे करेंगे, 1.01 रेस टू, अगर 1 है तो कुछ नहीं करना है, रेस टू 1 मीन्स 1.01 ही आएगा। अगर रेस टू 2 होगा तो 1.01 इंटू 1.01, अगर रेस टू 3 है तो 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, उसी नंबर से आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो आपको रेस टू 3 का आंसर आएगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, रेस टू 2 वाला भी बता दिया, रेस टू 3 वाला भी। एग्जाम में जैसे आएगा आप वैसे करना।